कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई। मट्टी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गत ही। कूप भरियो जैसे दादरा, मानस की गत ही। कूप भरियो जैसे दादरा, कश देश विदेश न बूझै। ऐसे मेरा मन बिख्या बिमोहिया, कश आरा पार न सूझै। कश आरा पार न सूझै। सगल पवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाए जी। मलन भई मत माधवा, तेरी गत लखी ना जाए। तेरी गत लखी ना जाए। हर बेअंत हो मित कर वरनो, क्या जाना होए कैसो रे। करूं बेनती सतगुर अपने, मैं मूर्ख देहो उपदेसो रे। मैं मूर्ख देहो उपदेसो रे। परम सन्मानी योग, जुगो जुग अटल रूहानियत दे भंडार, दया सिंध कृपा निध धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सर्वत्र माई भाई बहुत वड्डियां भागां वाले हो, जो मीरी पीरी दे मालक सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दी पावन चरण छो प्राप्त इस पावन धरती उत्ते जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पावन प्रथम पहले प्रकाश पुरब दीयां खुशियां अंदर चल रहे इन्हां गुरमत समागमां विच हाज़रियां भर के लाहे प्राप्त कर रहे हो। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का कोटान कोट शुक्र शुकराना है, जो त्रुठ के ये बख्शिशां कीतियां हन। अमृत गुरबाणी दे शब्द कीर्तन गुरु प्यारे कीर्तनियां पासों सरवण कर रहे सो। आओ जिस विषय की आरंभता आपां कल तो कीती है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की संपादना और आद बीड़ श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का पहला प्रकाश, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पावन प्रकाश उत्ते ही अज मैं बेनतियां तुहाडे चरनां विच कुछ रखणियां हन। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नदर किरपा करन,
ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਈ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਤਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਜੋ ਅਧੂਰੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਉਹ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਬਿਨ ਸੇ ਮੋਹ ਮੇਰਾ ਰ ਤੇਰਾ, ਬਿਨ ਸੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰੀ, ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੰਤੋ ਇਹਾਂ ਬਤਾਵੋ ਕਾਰੀ, ਜਿਤ ਹਉਮੈ ਗਰਵ ਨਿਵਾਰੀ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਜਲ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਮਨ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਵਾਰ ਤੋਂ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁੱਟ ਕੇ, ਅਦਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬੱਧੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਬਚਣ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਮੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਰੀ ਫੁਰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਦਵੈਸ਼ ਜਾਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀ। ਉਹ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 1 2 3, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ 1 2 3 4 5, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲਫ ਵੇ ਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਤਾਂ ਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 2, ਵੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਿਵੇਕ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਫੁਰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਇਹ ਮਨ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜਦਾ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਅਹੰਗ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਣ ਮਾਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀ ਚੱਲ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਰਹਿ, ਭੁੱਖੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬਰਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ, ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਤਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਮੈਲ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪ ਨਾ ਮੂਆ, ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣੈ ਜਿਨ ਤੂੰ ਕੀਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਰਮੀ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰਦਾ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜਦਾ। 2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸਕੂਲੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ, ਐਬਸੈਂਟ ਬੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲੈਕਚਰ ਮਿਸ ਸੀ। ਤਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਫੇਲ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ।
जदों साल बाद उहदा नतीजा उहदा रिजल्ट फेल आया उदों सब नूं चिंता पैदा हुई। टीचर भी कहंदे आउंदा ते रोज़ सी, बड़ा लायक बच्चा है। पेरेंट्स कहणगे जांदा ते रोज़ सी स्कूले, घंटियां वधी किताबां लैके भी बैठा रहिंदा, रोज़ स्कूल पहलां जांदा, कदे इहदे लैक्चर मिस नहीं, कदे इहदी एबसेंट नहीं लगी, अटेंडेंस पूरियां ने, लैक्चर पूरे ने, फेल क्यों हो गया? उत्ते चिंता पैदा हुई। पता क्यों फेल होया? पहला स्टूडेंट इसलिए फेल है क्लास विचों कि उहदी अटेंडेंस पूरी नहीं है, उहदे लैक्चर मिस ने, उन्हें क्लास विच अपनी अटेंडेंस पूरी नहीं दिती, इस करके साल बाद उहदा रिजल्ट फेल। ते जिहड़ा दूजा स्टूडेंट वो क्यों फेल होया? उहदी अटेंडेंस तां पूरी सी पर क्लास विच बैठिया अटेंटिव नहीं सी, सावधान नहीं सी, सुचेत नहीं सी, तन करके बैठा, जो पढ़ाया मन ने पढ़िया ही नहीं। यही गल महाराज जी कहने, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, किते तेरा चित्त भी एकाग्र होकर जुड़ जाए, फिर ते सोने ते सुहागे वाला काम। तो भागां वाले जुड़ बैठे हो, आओ पावन विचार विच अपनी सुरत जोड़िए। एक बार बख्शो सीस दोवें हथ जोड़, हाजरीन गुरु फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की उस्तत विच प्यार नाल ये पंक्ति पढ़ियो, फिर विचार विच आपां जुड़ना। पूर्ण एकाग्रता लई करो कृपालता, ते सारे आखो जी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों का ध्यान धर के, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर बल बल जाइए, ऐसे ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे, ऐसे गुर को, वाह ऐसे गुर को मोहे तारे। मेरा गुरु मुक्त है बंधना तो, ते सिख नूं भी मुक्त करा देगा बंधन तो, पर उहदे वास्ते सतगुरु जी सिख वास्ते कंडीशन रखणगे। देखो एक चीज़, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी विचों समुची मानवता लई उपदेश है। ये ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गुरु ने सिखां दे, पर जदों कोई हिरदे की गहराई तो बुझेगा उदों समझ आएगी गुरु ग्रंथ साहिब कल्ले सिखां दे गुरु नहीं, ये समुची मनुखता दे गुरु ने और समुची मानवता दे भले वास्ते उपदेश है गुरु ग्रंथ साहिब च। अकाल पुरख रब की कोई कंडीशन नहीं है मिलने वास्ते। जिन्हों भी परमात्मा मिलिया, रब मिलिया, अकाल पुरख वाहिगुरु परिपूर्ण परमात्मा गोपाल गोबिंद धरणी धर गॉड, ਉਹਦੇ दर्शन होए किसी भी रूप च, वो अनकंडीशनल मिलिया। ਉਹਦੀ कोई कंडीशन नहीं कि इस तरह का बन के आ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੇਖ धारण कर, ਇਹੋ ਜਿਹਾ पाठ रोज कर, इन्ने वजे हर रोज उठ। रब की कोई कंडीशन नहीं, पर रब द्वारा निश्चित किए हुए गुरु की कंडीशन है। रब द्वारा निश्चित किए हुए गुरु की शर्त है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सिख ਨੂੰ गुजरना पएगा। जिन्नी देर उस कंडीशन चों गुजरदा नहीं, उन्नी देर उन्होंने अकाल पुरख की प्राप्ति नहीं होएगी। हुण गुरु विच विचोले का काम करेगा। साहब ने बाणी अंदर जदों गुरु की गल की, क्योंकि बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। साहब सच्चे पातशाह इत्थों तक कहणगे की है जो गुरबाणी विच नहीं है, कहते ने सब कुछ मिलेगा। रत्ना रत्न पदार्थ बहु सागर भरिया राम,
ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਰਾਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਤਨ। ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਰਾਮ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਨਿਰਮੋਲਕ ਰਤਨ ਅਪਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰੀ, ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੰਨ ਰਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਗਮ, ਗਮ ਦਾ ਅਰਥ ਪਹੁੰਚ। ਤੂੰ ਖਿੰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਮ ਜਾਏ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੁਰੂ ਤੱਕ। ਖਿੰਨ ਰਮ ਗੁਰ ਗਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਹਰ ਦਮ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਦਮ ਚੇਤੇ ਰਵੇ ਬਾਣੀ, ਹਰ ਦਮ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖਿਨ ਰਮ ਗੁਰ ਗਮ ਹਰ ਦਮ ਨੈ ਜਮ, ਹਰ ਕੰਠ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਹਾਰੀ ਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਹਿਰਦੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਸ ਜਾਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੇਗੀ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਸ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤੇ ਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਦਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ? ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹੋ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਹੋ ਜਾਏ ਲੋਹਾ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਮਨੂਰ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਹੋ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੈ, ਪਾਹਣ ਮਾਨਕ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ। ਕੰਠੋ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਏ, ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿੰਨ ਕੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਸ਼ ਪ੍ਰੇਤ, ਸੁਰ ਨਰ ਭਏ। ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦ ਬਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲੱਗੀ ਬਾਰ। ਤੈਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਬਣੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਿਚੋਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਹਿਣਗੇ ਤੈਂਡੀ ਬੰਦਸ਼ ਮੈਂ ਕੋਏ ਨਾ ਡਿਠਾ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ। ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ, ਜੈ ਮਿਲ ਕੰਤ ਪਛਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਵਿਚੋਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕਹਿਤਾ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਜਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜੀ, ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਈ। ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਵਾਸਾ, ਪੱਛਮ ਅੱਲੇ ਮੁਕੰਮਾ। ਦਿਲ ਮੈਂ ਖੋਜ ਦਿਲੇ ਦਿਲ ਖੋਜੋ, ਇਹੀ ਠੌਰ ਮੁਕੰਮਾ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਵੇਖ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ, ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਘਰ, ਤਿੰਨ ਦੀਆ ਤਾਲਾ, ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਆ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਲਾ ਲਾਤਾ ਅੰਦਰ। ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਦਾਨ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ,
पर अखां दी कोई निश्चित की हुई दूरी है जिहड़ी वेख सकदी, उस तों गाह नहीं दिसेगा। इदां सुरती की निश्चित की हुई अंदर दूरी है जिहड़ी आत्मा उत्थों तक जाती, उस तो बाद संसार दिसी जाता। अपन अंदर बैठा निरंकार नहीं, तो महाराज कदों दिसेगा? कहने जदों गुरु ने ताला खोलता। जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सौंपाई। रब ने कुंजी गुरु नूं सौंपती कि लै भी हुण गुरु कोल चल जी तां ताला खोलेगा। गुर कुंजी पाहू निवल, मन कोठा तन छत। नानक गुर बिन मन का ताक न उगड़े, अबर न कुंजी हथ। गुरु विचोले तो बगैर किसे हथ कुंजी नहीं। विचोले दे अर्थ बड़े प्यारे विद्वानां ने कीते, विच ओला रखण वाला। हुण जे गुरु विचोला ते ओला काहदा रखदा? एक बेनती समझियो, सतगुरु भी विच विचोले दा कम करनगे किवें? ओए सिखा तेरे कीते होए अपराध कीते होए पाप कर्मां ते मेरा सतगुरु पड़दा पा के तैनूं रब नाल मिला देगा। जिन्नी देर गुरु विचोला पड़दा नहीं पाएगा पापां ते, उन्नी देर इस आत्मा दा परमात्मा नाल मिलाप नहीं होएगा। गुरु विच विचोला बन के पड़दा पाएगा, वो तेरे औगण पाप ढक देगा। वो पाप जिहड़े जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे। दया करो किश मेहरो पावो, डुब दे पत्थर तारे। गुरु ने पापां ते पड़दा पा के विचोले दा काम कर देना। ते साहब सतगुरु जी समझाउंदे, कहंदे जदों गुरु दी नदर कर्म होई, उदों हिरदे विच गुरु दी बाणी वस गई। ते गुरु दी बाणी ने फिर की कीता? देखो बेनती समझियो, साहब कहंदे गुरु दी बाणी विच ताकत है कि इस परपंच विच, इस संसार विच लोग गुमान विच बैठे ने, ते गुमान अहंकार दी मैल गुरु दी बाणी तो बगैर उतरनी नहीं। उत्थे सच्चे पातशाह जी ने जिक्र किया, कहणगे इस परपंच में साचे नाम की वडाई, मत को धरो गुमाना। अहंकार न करियो भाई, इस संसार विच जे किसी दी पक्की वडियाई रहेगी ते नाम दी रहेगी, पदार्थां दी सदा वडियाई नहीं है। ते महाराज जी फिर पता किवें लगे? कहणगे ए बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर रवै हर नमा। इस बाणी नूं किते हिरदे करके जान, जदों मन करके ये बाणी तेरे हिरदे च वस गई, उदण नाम रम जाएगा अंदर। उतों बगैर शोभा का पता नहीं लगना। गुरु अमरदास महाराज नूं सिखां सवाल किया, कहंदे पातशाह कहंदे रहिंदे हो नाम की वडियाई, बाणी की वडियाई, बाणी की शोभा। कहंदे असीं तां दुनिया च वेखिया पैसे की बड़ी शोभा, जिहदे कोल पैसा उहदी बड़ी दुनिया च वडियाई हुंदी। ते गुरु अमरदास साहब बोले, कहंदे बिल्कुल सच आ, हुंदी वडियाई उन्हां दी। पैसे वाले की वडियाई है, जिथे मर्जी वो पैसे वाला अपना अहुदा कोई दुनिया में बना लै, कोई राज सत्ता दे विच वो बंदा आ जाए, दो चार नींह पत्थर ला देगा किते। पर साहब जी बचन कहंदे सिखो, पता किन्नी को वडियाई पैसे वाले दी? कहंदे महाराज किन्नी क? कहंदे नाम बाणी दी वडियाई आ जुगो जुग, ते पैसे वाले दी वडियाई 4 दिन। सरकार बदलण दी देर आ, गुस्ताखी माफ, नींह पत्थर भी बदल जाते हैं। ये सच है, 4 दिन की वडियाई। हजूर कहंदे इस जुग में शोभा नाम की, बिन नावै शोभ न होए। ये माया की शोभा 4 दिहाड़े जांदी बिलम न होए। 4 दिनों की शोभा वडियाई बहुती देर नहीं हो रही। महाराज पक्की वडियाई किहनां दी? कहंदे नाम बाणी दी। एक बेनती समझियो, गुरु ग्रंथ साहब जे गुरु जुगो जुग अटल ने, ते गुरु विच भेद होए सिख भी जुगो जुग अटल ने। बेनती समझियो, सतगुरु ते सिख विच जदों भेद नहीं रहेगा। अज गुरु ग्रंथ साहब जी की गल चले कि बाबा बुढ़ा साहब की गल नहीं होएगी। अज गुरु तेग बहादुर साहब की गल चले तो कि भाई मती दास साहब की गल नहीं होएगी। अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज की गल चले तो कि भाई बचित्र सिंह की गल नहीं होएगी, भाई दया सिंह की गल नहीं होएगी, बाबा दीप सिंह की गल नहीं होएगी। जे गुरु जुगो जुग अटल है तो गुरु वे समाए सिखां की कहानी भी जुगो जुग अटल है। हुण मैं प्रकाश उत्ते कुछ बेनतियां करनियां, बेनती समझो। जिहड़ा दिन आपां मना रहे हाँ,
ये आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बीड़ का श्री हरमंदर साहब प्रकाश का दिन मना रहे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बीड़ का प्रकाश दिन मना रहे हैं। गुरबाणी दी गुरु की बाणी का प्रकाश दिन नहीं है। बाणी का प्रकाश उस वक्त हो गया जदों गुरु नानक साहब का प्रकाश होया। गुरु की बाणी का प्रकाश उदों ही है जदों गुरु नानक साहब का प्रकाश, जदों तो गुरु नानक साहब का प्रकाश होया उदों तो सच का प्रकाश चार छपेरे हो गया। प्रकाश का अर्थ चानण। ते जे तुसी गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रथम मैं कल भी बेनती की जिलत तो दर्शन करो तो उपर लिखा होया आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। पहला गुरु शब्द वरत्या। गुरु का अर्थ भी प्रकाश आ। गृह धाती तो धातु तो यह उत्पन्न होया शब्द जिहड़ा संस्कृत चों लिया उहदा अर्थ भी आ हनेरे विच प्रकाश करन वाला, हनेरे विच चानण देण वाला। गुरु का अर्थ भी प्रकाश। गुरु नानक साहब के प्रकाश नाल ही प्रकाश हो गया। वो किवें? सिर्फ मैं तुहाडा ध्यान दिवाना इतिहास के छोटे छोटे पैराग्राफ टच करके। धन गुरु नानक साहब का प्रकाश होना सी ते तलवंडी विच एक औरत रहिंदी आ मुसलमान। एक घर तो अत गरीबनी। इहदा काम पता की? इहने तलवंडी विच एक काम कीता। सियाणप है इहदे हत्थां विच। जदों किसे माई दे बच्चे बच्ची का जन्म होना होवे 10-15 दिन महीना पहला इनू लै जांदे। इन्हें रोज जाना, उहदी सेवा संभाल मालिश करनी, बच्चे की सेहत देखनी। उदों डॉक्टर नहीं सी हुंदे। ठेठ पंजाबी विच दाई पुणे का काम करदी। पेके घर तो रखिया नाम इहदा पेकियां ने दौलतां। तलवंडी व्याही गई। अत दी गरीबनी। इहदा घर भी कच्ची छन ते खाण वास्ते लोकां दे घरों इधर उधर काम करना। दिने कदे काम ना होना, भांडे मांज लेने, जां किसे दे कोई पुत्र होना उन्हें पसेर दाने दे देने, आटा दे देना, कपड़े दे देने दा गुजरान चली गया। अज जदों बाबे नानक दे घर मेहता कल्याण दास दे घर आई ते गुरु नानक साहब दे प्रकाश तो पहला देखो मैं बेनती प्रकाश ते करनी। गुरु नानक साहब दे प्रकाश नाल बाणी दा प्रकाश है ते चानण फैल गया। ये दौलतां बोली हाथ जोड़ मेहता कालू 5 सालां बाद रब तेरे घर किरपा करन लगा। बेबे नानकी दी उम्र उदों 5 साल दी। 5 साल पहला रब ने तैनू धी दिती सी। इस वार किते रब परमात्मा खुदा करे जा मेहता कल्याण दास तेरे घर पुत्र होवे ते वेखी मेरी वारी हाथ पिछे ना कर लई। इस गरीबणी नू 4 सिर दाने दे दें, सियाल आ रहा बच्चे रज के खाणगे, तैनू असीसां देणगे। मैनू गरीबड़ी नू एक अद्धा गर्म बिस्तरा दे दें, मेरे बच्चे ठंड तो बच जाणगे। घर कोठी विच दाने नहीं, 4 सिर दाने दे दें। जा रब किरपा करे तेरी किते आस पूरी हो जाए। ते मेहता कल्याण दास बोले दौलतां रब करे तेरे मूँह दे बोल होण सच, जो तू मंगेगी तेरी झोली पावांगा। जदों धन गुरु नानक साहब का प्रकाश होया ये औरत दौलतां दाई ਜਿਹੜੀ 2 दिन 4 दिन पहला मंगदी आ हाथ जोड़ के मेहता पटवारी कल्याण दास देखी किते हाथ पिछे ना खिंच लई। तेरे घर पुत्र होया ते गरीबणी नू 4 सिर दाने दे दें, गर्म बिस्तरा दे दें, सियाल च मेरे बच्चे तैनू सीसां देणगे। कौन दसे दौलतां दाई अज तू हाथ जोड़ के मंगदी है। ओए भागां वालीए तू ते दुनिया दी पहले ही वो भागां वाली औरत है जिन्हों निरंकार रब गुरु नानक दे जन्म देण वाली मां तो भी पहला दर्शन होणगे। देखो मां तृप्ता नूं दर्शन बाद विच। भागां वालीए तू ते पहले ही भागां वाली जिन्हों गुरु नानक दे सब तो पहला दर्शन होने, जन्म देण वाली मां तो पहला भी दर्शन। ते जदों गुरु नानक साहब दा प्रकाश होया इन्हें बाहर पूर्णमाशी दे चंद्रमे दा चानण बेड़े विच आके कहा पटवारी बधाई होवे रब ने तैनू पुत्र दिता। ते मेहता कल्याण दास अपने पिता बाबे शिव राम दे हथ विच वो थाली मोहरां दी भरी हुई फड़ाउंदे ने, कहंदे ने लै झोली कर दौलतां
तेरी झोली विच दौलत पावां, जिन्ने सिर दाने कैसी तैनूं दाने दवांगे, एक बिस्तरा भी तैनूं देवांगे, सियाल तेरे सौखे लंघण। जदों आ बचन कह झोली कर तैनूं दौलत पाईए, ते हथ नाल ओ दौलत वाला थाल परां करता, रहण दे पटवारी मैनूं नहीं चाहिदा। पुछया की गल थोड़े ने, नाराज क्यों हो रही हैं? दस, जिन्ने कहांगे उन्ने पैसे दे दांगे। अज खुशी बड़ी, दौलतां तू हथ नाल थाल परे क्यों कीता? अखां विच वखरी खुमारी, चेहरे ते वखरी लाली, ते अखां भर के रो के एक गल कही सी, मेहता कल्याण दास जदों तेरे घर विच आई सी उदों दौलतां सचमुच भुखी सी। अज तेरे पुत्र दे नूरानी मुख दे दर्शन कीते, अज जन्मां जन्मंतरां दी भुख मिट गई। ये दौलत नाल रज गई, अज सच दी दौलत नाल रज गई, अज भुख कोई नहीं रही। देखो गुरु नानक साहब दे दर्शन होए, प्रकाश उसे वक्त आ। साहब ने बाणी अंदर बचन कहा, धन गुरु अर्जन देव महाराज कह लगे, मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट परत नी तरिया रे, गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गुरपास ना परिया रे। हजूर दी 5-7 वरियां दी उमर ते पंडित हरदयाल आया, शरीका इकट्ठा करके कहंदे जनेऊ पाउणा साडी मर्यादा है। गुरु नानक साहब दे प्रकाश नाल ही प्रकाश हो गया। जिदन साहब ने कहा जंजू चाहिदा पंडित पाउण वास्ते, पर जे आ है तां पा दे केड़ा, दया कपा संतोख सूत, जत गंडी सत बट, एओ जनेऊ जी का है ही तां पांडे घत, ना ये टुटे ना मल लगे, ना ये जले ना जाए, धन सो मानस नानका जो गल चले पाए। पंडित दे हथ जुड़ गए, कहंदा जी जंजू नहीं पाउंदे, घर विच सूतक होया ओदी तां शुद्धि करा लो। सच्चे पातशाह ने बचन कहे, पहला सूतक दस केड़ी चीज विच आ, केड़ी चीज है जिहदे विच सूतक ते पातक नहीं है। हजूर ने उस वक्त गुरु नानक दे प्रकाश नाल बाणी दा प्रकाश, जदों साहब ने कहा 10 पंडित हरिदयाल केड़ी चीज है जिहदे विच सूतक नहीं, जेते दाने अन्न के जियां बाज ना कोए, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए। हाँ, एक सूतक नूं शुद्ध करना चाहिए, एक सूतक तो बचो। उन्होंने महाराज ने मनुखता वास्ते चानण दिता। पता की क्या कह लगे, मन का सूतक लोभ है, जेहबा सूतक कूड़, अखी सूतक बेखना, पर त्रिया पर धन रूप। आ सूतक की शुद्धि करा। घर विच बच्चा होया, सूतक शुद्धता कराउण दी लोड़ नहीं है। सज्जणा एक चीज नूं शुद्ध करा, तेरे मन का सूतक है लोभ, तेरी जेबा का सूतक है कूड़, तेरी अखां का सूतक है पराया धन वेखना, पराया तन वेखना। इतों शुद्धि करा जे करा सकदा। पर त्रै पर धन रूप, कन्नी सूतक कन्न पै लाए तवारी खाहे। चुगलियां सुनदा तू, ये सूतक आ, मैले हो गए कन। कन्नी सूतक कन्न पै लाए तवारी खाहे, नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाए। हंस वर्गा आदमी ते महाराज कहने जमापुरी च बन्निया गया। क्यों? आ इंद्रे सूतक मैल नाल भर गए। गुरु नानक साहब का प्रकाश बाणी का प्रकाश है। एक उदाहरण होर समझियो। धन गुरु अंगद देव महाराज एक सिख दे कोलों बाणी सुनते ने, ते देखो प्रकाश किवें। 1604 वाला पहला प्रकाश नहीं है, ये आद बीड़ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का हरमंदर साहब प्रकाश है। उंज बाणी का प्रकाश पहले ही हो गया। जदों भाई जोध की रसना तो पौड़ी सुनी, उदों अंदर प्रकाश हो गया। हथ जोड़ कहंदा, सिखा पैरों में घुंगरू पा के नच के वेख लिया, मन नूं सुकून नहीं आया। 22 साल हो गए यात्रा करके देवी दी, मन नूं सुकून नहीं आया। अज तेरी रसना तो आ शब्द सुने मन जुड़ गया। दस ये उचारण वाला कौन है? क्या जाओ फिर दर्शन करने तो करतारपुर चले जाओ। गुरु की बाणी दे एक शब्द ने प्रकाश कर दिता। धन गुरु अमरदास महाराज 22 साल गंगा यात्रा जाते रहे, ते जिदन बीबी अमरो दी रसना तो एक शब्द सुनिया, गुरबाणी का प्रकाश वेखो, चानन हो गया हिरदे विच।
जदों सुनिया करनी कागद मन मसवाणी, बुरा भला दोए लेख पे, ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलीए, तो गुण नाही रमत हरे। उत्थे जदों बचन सुनिया ये काया आरण, मन विच लोहा, पंच अगन तित लाग रही, कोयले पाप पड़े तिस उपर, मन जलिया सन्नी चिंत पई। जदों शब्द कन्नी पे ना बाणी दे, कि भया मनूर कंचन फिर होवे। लोहा भी कंचन हो सकदा, लोहा सोना बन सकदा। भया मनूर कंचन फिर होवे, जे गुर मिले तनेहा, एक नाम अमृत ओ देवे, तो नानक तृष्ट सदेहा। हथ जोड़ उदण कहा धीए नोहे, 10 पुत्ते बाणी केदी पढ़ रही। 22 सालों तो जेड़ा मन शांत नहीं होया, एक शब्द नाल प्रकाश हो गया। 10 एक कौन है? आख्या ये बाणी गुरु नानक निरंकार जी दी, ते जिन्हां दी गद्दी ते अज कल मेरे पिता बैठे ने। देखो हुण कंडीशन की है, गुरु की शर्त विचों गुजरना पेगा। रब अनकंडीशनल मिलता है, पर रब द्वारा निश्चित कीते गुरु की शर्त है। पता की एक पता मैं तुहानूं श्रवण करवावां, फिर मैं इत्थे लियाउणा तुहानूं। गुरु अर्जन देव महाराज जी बचन कहंदे 5 शर्तां ने गुरु दियां, गुजर उन्हां विचों, लंघ उहदे विचों। जे सिखा तू ऐस दर तो उठ के गुरु के घर जाना चाहुंदा, जिथे तुसीं बैठे हो ना, ये गुरु का घर नहीं है, ये सिर्फ गुरु का दर है। ताइयों इहदा नाम भाई कान सिंह जी नाभा उन्हां महान कोश विच गुरद्वारे के अर्थ दसे। इहदा नाम रखा गुरद्वारा। गुरु का दर, गुरु का दरवाजा, जिथों दरवाजे विचों गुजर के घर के मालक नूं मिलीदा। किसी मालक नूं मिलण जाओ दरवाजे ते नोक करी दी, जे मालक नूं चंगा लगे तो घर विच बिठाउंदा, नहीं दरवाजे तो मोड़ दिंदा है। आपां गुरद्वारे विच गुरु के दर ते बैठे हैं, ते महाराज घर विच किवें जाइए? गुरु अर्जन साहब ने बचन कहे, सुखमनी साहब विचों तुहाडी रसना ते रहिंदे ने। महाराज जी कहते गुर के गृह सेवक जो रहे। गृह का अर्थ घर। जे गुरु के घर विच सेवका रहना चाहुंदा है, कोई सेवक गुरु के घर आना चाहुंदा है, महाराज दसो शर्त की? कहने लगे पहली शर्त, गुर के गृह सेवक जो रहे। पहली शर्त, गुर की आज्ञा मन में सह। कला सुनी ना, सहना सिख। सुनना होर है, सहना बहुत औखा। कई बार सुन लेंदे हो किसी की गल ते घर जाके बंदा क्रोधी होकर 20 गालां कढ़दा। महाराज कहते जिदन सहन शक्ति अंदर बन जाए, इत्थे कन्नां नाल सुनिया धर्म का उपदेश, दहलीज टपदियां कंपलैक्स निकलदियां भुल गया, वो सज्जणा सुन के सहना सिख जीवन में। महाराज अगली शर्त कहते जदों सहना आ गया ना, ते तेरी हालत की होनी, कहानी की शुरू होनी। जिन्हें उपदेश सह लिया उहदे विच आ चीज आएगी, गुर के गृह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह। फिर कृपा की होनी, आपस को कर कश ना जनावे। साहब कहते उदण तेरा आपा मिट जाना, तू ये नहीं दसेगा मैं आह काम किया, मेरी इन्नी सेवा, मैं इन्ना कुछ किया, तेरा आपा मिट जाएगा। आपा मिट गया तो शर्त टप गया गुरु की। दर तो उठ के घर में जाना है। गुरु अर्जन साहब का दरबार सजया, और एक सिख तुरया आउंदा, इन्हें वस्त्र पहने हुए शाहूकारां वाले, बड़ी कीमती भेटा चुकी हुई कोल। सारे सिख वेखण लगे, जदों मत्था टेकिया भेटा रखी कीती परकरमा, ते गुरु अर्जन साहब की नज़र पई, ये बह गया संगत च। दीवान मुक्कन लगे, हजूर पुछदे दसो जी कौन हो, कित्थों आए, की नाम ते हुक्म की? ये बोलिया जी मैनू मालवे दा चौधरी बहलोल कहंदे ने। ते महाराज जी कहंदे जी कम दसो। कहना जी मेरे ते भी कृपा कर दिओ सिखां वाली। गुरु अर्जन साहब बोले हस के मुस्कुरा के, कहंदे बहलोल चौधरी ओए पहले दिन आया ते पहले दिन ही कृपा मंगदा। कहने महाराज जी फिर? कह लगे थे किरपा का मीह वरसदा,
इत्थे दिन नहीं गिने जाते कोई कदों आया तो कदों किरपा हो जाए, पर किरपा मंगण वालिया जिहड़ी किरपा मंगदा सांभण लई भांडा बनिया अंदर, जिहड़ी किरपा मंग रहा उहनूं संभालण लई भांडा तैयार हो गया अंदर। तेरे हिरदे दा भांडा शुद्ध होया, किते यह ना होवे वस्तु कीमती होवे भांडा धोता ना होवे खराब हो जाती। साहब ने उत्थे शब्द उचारण किया, कहणगे भांडा धोए वैस धूप देवो, सोही महला पहला गुरु नानक साहब जी। भांडा धोए वैस धूप देवो, तो दूधे को जावो, दूध करम फन सुरत समायण होए निराश जमावो। महाराज किवें भांडा शुद्ध होवे, कहंदे जपो तां एको नामा, अवर निराफल कामा। एक बार कहो सारे, जपो तां एको नामा, जपो तां एको नामा, जपो तां एको। वाहिगुरु। जपो तां एको, अवर निराफल कामा, अवर निराफल कामा, अवर निराफल। साहब ने कहा बहलोल चौधरी बाके कम निफल ने की कर, ए मन इटी हाथ करो फन नेत्रो नींद ना आवे। अपने मन नूं इटियां दी तरह पकड़, जिवें ओ स्वाणी दुध रेकण लग्या पकड़ दी। ये सच है, तेरे मन चों परमात्मा दे नाम दा मक्खन पैदा होएगा, प्रेम रूपी मक्खन अंदर जरूर पैदा होएगा। इन्हें पूछया महाराज फिर बख्शो सेवा। हजूर ने कहा बाबा बुढ़ा साहब सेवा लाओ। इनू सेवा च जोड़िया। उस तो बाद सेवा शुरू हुई श्री हरमंदर साहब दी नींह रखण दी। ते जदों नींह रखण दी सेवा शुरू हुई, उदों साहब ने बचन कहा पक्कियां इट्टां दे आवे तैयार करो, आपां पक्की ते लाल इट दी नींह रखनी। सिखां ने आवे लाए, बहलोल चौधरी ने सेवा की। ते जदों इस बहलोल चौधरी ने सिर ते गंदगी ढोई, जिन्ना कोई चिक्कड़ कूड़ा करकट पाएगा आवे च, उन्नियां इट्टां लाल पक्कियां होणगियां। इहदे आवे चों इट्टां लाल पक्कियां निकलियां। उदण हजूर आके पुछदे, कहंदे ये किस दियां इट्टां? अज बोलण दी समर्था नहीं रही कि मेरियां, मैं मिट गई। आपस कौ कर कशना जनाब है। गुरु अर्जन साहब पुछदे दसो किहदियां इट्टां दा चक्का? ते बाबा बुढ़ा साहब बोले जी, कहंदे इस दियां। कहंदे दस भाई बहलो ये तेरियां इट्टां? कहंदे नहीं पातशाह ये सब तुहाडियां इट्टां। महाराज मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा। उदण गुरु अर्जन साहब ने बचन कैसी बहलोल चौधरी भाई बहलो, सब तो पहलों वो कलियां इट्टां लाल नहीं होइयां, तेरा मन भी प्रेम विच रंगिया गया। आपस कौ कर कशना जनाब है, हर हर नाम हृदय सद ध्यावै, मन विच है सतगुर कै पास तीजी शर्त। ये नहीं कि कला तन नहीं आपां तां मन नहीं। साहब कहंदे मन दी भेटा रखी, क्योंकि तन करके पहरावा धारण करने वाले बहुते वार थिड़क जाते। जिन्हीं मन करके वसा लिया उन्हां दे सिर ते आरे चल जाते, सिक्खी तो पैर नहीं पिछे हटाते। तन करके धारण करने वाले वीजा लगन की देर है। आ साडा भी हुण डिपार्टमेंट जिहड़ा इदां दा हो गया, माफ़ करना, कीर्तन सीखण वाले स्टूडेंट साडे कॉलेज आउंदे कथा वाले, वो हारमोनीयम बाद च खरीदणगे, कोर्स करदे आ पहलां पासवर्ड बनाउंदे, वीजा लग जा किसी तरह बाहर का। विदेश की इन्नी भुख, बाहरला पहनिया होया पहरावा माफ़ करियो, कई बार विदेश की भुख ने डलाते। जेदा अंदरों मन जुड़दा, साहब कहंदे मन बेच, फिर ते सज्जना खोपरी लै जाएगी, केस नहीं कट्टे जाएंगे, क्योंकि मन जुड़ गया। मन विच है सतगुर के पास। ते चौथी शर्त साहब कहंदे तिस सेवक के कारज रास, सेवा करत होए निहकामी। इत्थे निहकामी दा अर्थ ये ना समझ लो जिहड़ा पैसा नहीं लैंदा। निहकामी दे अर्थ पंथ विच बदल गए हुण, पर निष्कामी दे अर्थ पता की ने? सिक्खा तू बाणी पढ़दा होवे
तेरे अंदर होर कोई कामना ना पैदा होवे। तू गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में बैठ के कीर्तन कथा सुने, तेरे अंदर कोई कामना पैदा ना होवे। तू गुरु की बाणी पढ़ के कीर्तन कथा करे, उदों करदियां कोई कामना ना पैदा होवे, एको ही चित जुड़िया रवे सतनाम श्री निहकामी। सेवा करत होए निहकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। कहते उन्होंने ते रब मिल जाएगा। 5 कंडीशनां चों गुजरा। सतगुर की बाणी ने प्रकाश किया सिख के जीवन में। धन गुरु अमरदास महाराज एको ही पंक्ति सुन दे ते वो शब्द सुन तो बाद मन जुड़ गया ते हाथ जोड़ के धीए नोहे 10 पुत ये बाणी कहदी। क्या जिस गुरु नानक निरंकार की बाणी है उहदे तख्त ते मेरे पिता बैठे हुण चले गए ते जाके उस शर्त चों गुजरे। अज तो पहला भी मिले गुरु अंगद साहब नूं ते जदों पहला मिले कुड़म बन के मिले सी, उदों गल बकड़ी विच लैके मिलनी कीती। अज लंबी लगी कतार विच आके खड़ गए। गुरु अंगद साहब की नज़र पई, उठ के हजूर गए, कहंदे जी ये जिहड़ी लैन है ना कतार, ये साडे सिखां दी आ। कुड़मां वास्ते कतारां नहीं हुंदियां। तुसीं साडे कुड़म हो, साडी धी विआही होई तुहाडे वल, कहंदे जी तुसीं सिद्धे मिलो आके। ते हाथ जोड़ बाबा अमरदास बोले, कहंदे सच्चे पातशाह जिदन कुड़म बन के आया सी उदन गल लग के मिलनी कीती। अज मैं कुड़म बन के नहीं आया, अज गुरु नानक दे घर दा सेवक बनने वास्ते आया। अज मैनू कतार विच लगा रहन दिओ। ते सच्चे पातशाह बड़े खुश होए, कतार च लग के मत्था टेकिया। ये नहीं जताया मैं तो कुड़म इत्थों दा। साहब ने कहा सेवा करो, गागर ढो। 12 साल गागर ढोई। बथेरे आके भलियां दे सब सके संबंधी मिहने मारते रहे। अमरदास ओए जे किते झाड़ू फेरना किसे होर थां ते चला जा, कुड़मां दे घर गागर ढोना साडी नक कटाती। कुड़मां दे घर सेवा करदा 2 रोटियां दी खातर बुढ़े वेले ओए शरीके बरादरी च साडी बेइज्जती करती, साडी भलियां दी कुल दी नक कटाती। कौन दस्से ओ भलियां दी कुल नीवी नहीं होई। एक दिन दुनिया च ऐसा आउणा जिदन सारी दुनिया हाथ जोड़ के कहेगी पता की, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो ये बन आवे। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो ये बन आवे। भले अमर भले अमर जेड़े कहंदे सी ना भलियां दी नक नीवी करती, पूरी दुनिया च महिमा फैल गई। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। पर कदों? जदों गुरु की कंडीशन चों गुजरे, बाणी का प्रकाश हो गया अंदर। उस तो बाद सच्चे पातशाह के घर का इतिहास बचिओ। बाबा बुढ़ा साहब जिन्होंने गुरु अर्जन देव महाराज जी अज अमृत सरोवर रामसर सरोवर के कंढियों उठा के लियाते ने। जेड़ी बाणी वाह वाह बाणी निरंकार है, उस बाणी विच समाया कोई सिख चाहिदा उस बाणी की संभाल करने वास्ते। ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब पता कौन ने? जिन्हों गुरु नानक साहब कह गए ने, बुढ़िया तेरे तो ओले ना होसी। जिथे तेरा वासा उत्थे गुरु नानक दा वासा। ते अज ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब धन गुरु अंगद साहब महाराज वेले घटना घटी। जदों मत्ते दी सरां दी एक बीबी जिहड़ी खडूर साहब रहिंदी है, इतिहास विच इहदा नाम माता भराई आया ते सतभाई भी इहदा नाम आया। सबराई ऊं लिखिया हुंदा, असलीयत विच इहदा नाम सत भाई तां सी। इहदे 7 भरा सन ते कल्ली भैण, इहनूं 7 भाइयां वाली लोग कहिंदे सी। फिर नाम मशहूर हो गया सपराई। गुरु अंगद साहब जी इहदे घर रहे ते साहब ने कहा किसे नूं नहीं दसना कि गुरु अंगद देव इत्थे रहिंदे ने। जदों सिखां नूं गुरु अंगद साहब ना मिले
ते करतारपुर सिख संगत आई जिथे गुरु नानक साहब ने बाबा बुढ़ा साहब की सेवा लाई और सिखा बेनती की, बाबा बुढ़ा जी तुहाडे तो बगैर हुण गुरु नानक दे कोई दर्शन नहीं करवा सकता, दसो गुरु अंगद साहब किथे। ते बाबा बुढ़ा साहब आए, आके माता सबराई दे घर मोरे संगत बह गई, दरवाजा खड़काया, माता सबराई बोले दसो भाई कौन हो। कहते गुरु दे दर्शन करने तुहाडे घर रहिंदे। माता सबराई बोली, कहनी बाबा बुढ़ा तैनू किवें पता मेरे घर विच गुरु आ, तैनू किने दस्सिया मेरे घर च गुरु। ते बाबा बुढ़ा साहब बोले सबराई दसन की लोड़ नहीं पैंदी, जेदे घर विच गुरु होवे ओदे नेत्रां दा नूर दस दिंदा इहदे घर विच गुरु आ। तेरे घर विच गुरु दा वासा तेरे हिरदे घर च, ते तेरा चेहरा दसदा तेरे घर विच गुरु। ते हथ जोड़ के बाबा फिर मैनू विच शरीका ना बनाई, गुरु अंगद साहब दा हुक्म है कि किसी नूं दसना नहीं, दरवाजा बंद है, मैं दरवाजा खड़का के खुला नहीं सकती। बाबा बुढ़ा साहब ने पता की किया, कहते सिखो गुरु अंगद साहब दे दर्शन करने ने। कहते हाँ बाबा जी। कहते फिर गुरु नानक दे घर दी बाणी पढ़ो, गुरु नानक दी निरंकारी बाणी पढ़ी जाए ते होए नहीं सकता गुरु दर्शन ना दवे। ओए सिखो बाणी चित जोड़ के पढ़ो, मेरा गुरु अपने आप दर्शन देगा। वाह वाह बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर न कोए। जदों सिखा ने अलाप लेके पढ़िया कि गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसरना। अजे 5 पौड़ियां होइयां ते गुरु अंगद साहब उठ के दरवाजा खोल के बाहर आ गए। कहने बाबा बुढ़ा साहब तैनू गुरु प्रगट करन दी कुंजी हाथ आ गई, बाणी कुंजी है। देखो इत्थे हुण बेनती समझो, गुरु दे दर्शन करने ते बाणी विचों होणगे। अज उस बाणी दा तुसीं पहला प्रकाश पुरब मना रहे हो, ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब। ये क्यों सब कुछ होया? बड़ी कमाल दी घटना घटी। जदों गुरु नानक साहब ने परख की ना, उदों प्रिंसीपल सतवीर सिंह होना एक गल बड़ी प्यारी लिखी। कहते धानक रूप धारिया ते हजूर ने कुछ पैसे बोझे चों करके जिन्ने सी सुटते। कई सिखा ने चुके, कहते आ तां भागां वाली माया, घर नूं लैके मुड़ गए, बरकत पै गई। जिन्हों गुरु नानक ने माया देती होर की चाहिए, घर नूं मुड़ गए। कई गुरु नानक दे डंडे दी मार तो भयानक रूप देख के मुड़ गए। ते हुण ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब ते बाबा लहणा जी दोवें शरीर रह गए। उदों गुरु नानक साहब पुछदे, इत्थों तक भी तवा रीख ने गवाही भरी कि महाराज ने एक एक डंडा भी दोवां दी पिठ विच मारिया कि जाओ मुड़ जाओ, सब मुड़ गए। बाबे बुढ़े ने एक बचन कहा सी, बाबा जिन्हों जो चाहिए सी लैके मुड़ गया, जेदा घर सी अपने घर नूं चला गया। मैं ते 12 साल दी उम्र तो जदों तो तेरे चरण पकड़े उदों तो बुढ़े दा घर गुरु नानक तो सवाए रहा ही कोई नहीं। दस हुण बुढ़ा जावे ते किथे जावे। साहब ने बचन कहता सी, बुढ़िया हुण तेरे तो ओले ना होसी, जिथे तेरा वासा उत्थे मेरा वासा। जा अज तो गुरु नानक तेरे तो बख नहीं। ये तो हुण साखी चों एक चीज़ समझो, हजूर ने कहा 3 तरह के सिख होणगे, 2 तो फेल हो जाणगे। कहने महाराज किहड़े? आ हुण झात मारियो किते आपां ते नहीं उन्हां च जिहड़े फेल होण वाले। महाराज कहते एक वो सिख होणगे बाबा बुढ़ा जी जिहड़े आउणगे मायक पदार्थां करके, पैसा लैके मुड़ गए ना चुक के। कहते पैसे देते गुरु नानक ने, होर की चाहिए। एक वो सिख होणगे जिहड़े पैसे पदार्थां करके आउणगे, जिद्दण माया मिल गई उदण गुरु दा दर भुल जाणगे। 2-2 महीने दर्शन नहीं करते लोग, माफ करियो। वो सिख एक होणगे जिहड़े दुखां करके आउणगे, जदों सुख मिल गए परत के गुरु नानक दा घर छड्ड जाणगे। ये सच है कि जदों दुख होवे उदों 2-2 सुखमनी दे पाठ। ये भी हकीकत है, जदों तंदुरुस्ती आ जाए गुटकियां ते मिट्टी जम जाती, पढ़दा ही नहीं कोई, घरां च पए तुहाडे।
दुख वेले पढ़ रहे हैं, सुख वेले नहीं। पैसे चाहिए, पदार्थ आए गुरु चरणा च, जदों मिल गए परत के गुरु भुल गया। एक सज्जन गुरुद्वारे सेवा करता, साडे बड़े नज़दीकी रहे, किते उन्हां दी अंदर दी भावना ये होनी, बड़ी सेवा करनी होनी, चादरां धोनियां, रमाले धोने, सवेरे शाम बड़ी सेवा, ते रातों रात करोड़पति बन गए। किते राह जांदियां उस सज्जन ने, है तो गुरसिख, लैटरी पा गया। वो लाटरी निकली करोड़ रुपए की, ते 85 लाख रुपया उन्होंने मिले टैक्स कट के। वो 85 लाख की उन्हें लुधियाने च बड़े प्लाट लए, प्रॉपर्टी बनाई, कोठी लई। 5 वरे होए ते दुखनवान साहब आके बड़े प्यार नाल कहना जी 5 रागी सिंह नाल लियाओ, प्रशादा छकाउणा, चरण पाओ। जदों गुरसिख उहदे घर गए ना, माफ करियो, उत्थे बह गए, अजे प्रशादे विच देर सी, ते गुरमुख प्यारे जिहड़े सिख नाल गए वो कहे भाई साहब बैठे ही हैं बेले, गल्लां की करनियां, एक पाठ सुखमनी दा कर लईए। उन्होंने आवाज़ मारी, कहते जी सुखमनी साहब का गुटका दिओ, ते वो लभण लग गए। घर विच सुखमनी का गुटका ते छड्डो, नितनेम दा भी कोई गुटका नहीं सी, बाणी दी पोथी नहीं घर विच कोई। जिहड़े बंदे गुरुद्वारे सेवा करते सी, पैसे मिल गए, गुरु की बाणी भुल गई। साहब ने कहा 2 तरह के सिख फेल होणगे, जिहड़े पैसे मंगण आए परत के भुल गए फेल हो जाणगे, दुखां करके आए सुख आ गए ते भुल गए फेल हो जाणगे। एक वो होणगे जिहड़े दुख आवे, घाटा पै जाए, सुख आवे, उन्हां नूं कदे नहीं बिसरेगा। पता की कहणगे, जे सुख दे तां तुझे आराधी, दुख पी तुझे ते आई, जे भुख दे तां इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। वो पास हो जाणगे, वो नहीं फेल होने, उन्हां दा लोक भी सुखी ते परलोक भी सुहेला। एक गल मैं हकीकत वाली कह के समाप्ति वाल लैना, इहदे विचों 2 मसले हल हो जाने। एक ते गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का जिन्हां दा प्रकाश बना रहे हो, जे हो जाए प्रकाश अंदर ते बेनती समझियो। पहली गल तो जदों हरिमंदिर विच प्रकाश होया, कोई पदार्थ नहीं उत्थे, कल्ला गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश है, कल्ला गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश। इसलिए अंदर का आकार छोटा रखा गया, बहुता वड्डा नहीं। होर कोई चीज अंदर स्थापित ना की जावे। साहब कहते सिखा ये सच है, जे तू चाहना तेरा अंदर दा हिरदा भी उस हरिमंदिर वर्गा बन जाए ते अंदर बाणी दा प्रकाश हो जाए। ओए सिखा पहला खाली करना पैना अंदर मंदिर। महाराज खाली कित्थों? कहते जिहड़ा अंदर बैर विरोध काम क्रोध वसिया ना, किते खाली हो जाए नाले ही वासा हो जाना। पढ़िया कर बाणी, तेरे अंदर दा मंदिर खाली हो जाए। अरदास कर गुरु अर्जन साहब दे चरनां, सच्चे पातशाह काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इन ते आप छडावो, ए भीतर ते इनको डारो अपन निकट बुलावो। किते चीज़ां अंदरों निकल जाना, मंदिर खाली होवे, उस वक्त प्रकाश हो जाएगा। ते साहब सतगुरु जी ने जिक्र किया, सिखा जेड़े हरिमंदिर विच मैं गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश करन लगा, दुनिया विच जिन्ने मंदिर वेखोगे पौड़ियां चढ़ के मंदिर ने। इको एक हरिमंदिर ऐसा है जिथे पौड़ियां परकरमा चो उतर के दर्शन करने पैंदे। वो सिखा निमरता विच हिरदा नीवा कर लई, तेरे अंदर दा हिरदा मंदिर नीवा होने की देर है। गुरु ने किरपा दे जल नाल भर देना, उन्होंने नीवा हो जाए मन, अहंकार विच नहीं भरेगा। साहब सच्चे पातशाह कहते हैं जदों नीवा हो जाए तो फिर निमान विच टिके मंदिर की नींह वेखो। कुछ वरे पहला तुहाडे चों भी सिख गए होणगे, सेवा की, अजे तक हरिमंदिर दीयां नीहां दीयां इट्टां लाल ने, लाली चढ़ी रहेगी, तेरियां नीहां पक जाणगियां। फिर क्रोध दा हल्ला बोले ते तेरा मन नहीं डोलेगा, विकारां दी हवा चले तो डोलेगा ही नहीं। महाराज कदों? कहते जदों निमरता विच नहीं लग जाए, जदों टुटदा उच्चा अहंकारी बूटा। एक चीज़ मैं बहुत बार लाइव तो बेनती की, सख्त चीज़ टुटदी आ ते जिहड़ी चीज़ सॉफ्ट नरम कोमल होवे ना, निभ जाती है। जिन्ने दुनिया में क्रोधी बंदे सख्त हो जाओगे तुसी,
उन्ने रिश्ते टुटणगे। अहंकार सख्ती दिंदा ते साहब ने जिक्र किया मनमुख पाथर सैल ना भीजै। मनमुख अहंकारी है इसलिए पत्थर की तरह सख्त, जिहड़ा सख्त हो जाए वह टुटदा है, झुकदा नहीं है। अज रिश्ते टुटदे ने, डाइवोर्स हुंदा, क्यों? क्योंकि अहंकार विच सख्त हो गए रिश्ते। जे बंदे कोल प्रॉपर्टी पहले वो नहीं होमे जाती, कहना मेरे को इन्नी जायदाद, मैं इन्ना पढ़िया, इन्नी मेरे को नौकरी, इन्ना सब कुछ, इत्थों रिश्ता टुटदा। जे किते लेडीज़ कमाउण लग पई, हुण बच्चियां पढ़ियां लिखियां जॉब करनियां चाहिदी है, उत्थे अहंकार पैदा, मैं भी तो 22,000 कमाउनी महीने का, मैं क्यों ये करा, मेरे आउंदे नूं आ कुछ होना चाहिए। विदेशों में हर 10वां घर छड्ड के, USA के अंकड़े दसते हैं 11वें घर में डाइवोर्स, तलाक, रिश्ता टुट गया। क्यों? एक कोई चीज़ है, जे तू कमाना मैं भी तो कमानी आ। अहंकार ने रिश्ते तोड़ते। साहब ने कहा भावें लोक विच रिश्ता बनाना है ते भावें परलोक विच, बाणी ने तैनूं इक्को ही गल दसनी आ, वो सिखा तेरा मन झुक जाए, किते अंदर निमरता विच कह दे मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा रिश्ता निभ जाना। पटियाले दीवान चले 5-4 वरे पहला भी मैं इत्थों एक गल साखी रूपे सुनाई सी। सिख मिशनरी कॉलेज के साडे रसाले विच भी वो छपी जदों घटना घटी। पटियाले 5 दिन के दीवान चले, कथा कीर्तन होवे, इसे तरह संगतां आईयां। एक बच्ची परिवार नाल दीवान विच रोज़ आउंदी रही, ਉਹਦੇ बीएड ਦੇ फाइनल एग्जाम चलते सी। उन्हें 5 दिनों बाद जदों दीवान समाप्त होए ना, ते प्रबंधकों वालों उपराला किया सी अमृत संचार का। उस बच्ची का मन बनया, उन्हें किसी ना सलाह मशवरा घर परिवार च नहीं किया, क्योंकि माहौल का पता हुंदा है, तो परिवार अमृतधारी सी। उन्हें चुप करके ककार खरीदे। उस दिन किसी इशनान करके आके अमृत संचार हाल पेश हुई, ते अमृत छक के ककार सजा के गुरु दी धी पुत्र अमृत छक के बन के अज अमृतधारी होके घर गई, ते जाके बधाई दी। कहनी मां तैनू बधाई होवे, मैं भी अमृत छकांगा। जिहड़ी मां सी ना, उन्हें वेख के उपरों श्री साहब कृपान गुस्से जा गई। कहनी किनू पुछ के छकिया? वो कहनी मां पुछना किनू सी, तुसीं भी छकिया होया, मैं भी गुरु वाली बन गई। 5 दिन दीवान च जाते रहे, गुरु की बाणी ते बाणे की ते कथा हुई, ते गुरु वालियां नूं उत्थे थां मिलदा, फिर मैं नगुरी क्यों रवां? मां ने कहा धीए तैनू नहीं पता, पढ़ी लिखी तू बच्ची है, की पता रिश्ता मिले ना मिले, कोई अमृतधारी परिवार अगे जुड़े ना जुड़े। आह चिंता हुण तेनों अमृतधारी कित्थों लभांगे? अपने सहुरे घर भावें छके ना छके। जिहड़ी वो गल बच्ची ने कही ना, वो बड़ी कमाल दी। शाबाश ऐसियां बच्चियां दे जिहड़ा उन्हें जवाब दिता। पता की बोली? कहंदी मां चेहरा खुश, नेत्रां च नूर, ते खुश होके बोली, कहनी मां तू ना फिक्र कर। वो कहनी क्यों? मैं तेरी मां आ, क्यों ना फिक्र करा? कहनी मां अज जदों अमृत छकाया ना, ते बाद विच 5 प्यारियां ने एक गल कही सी कि अज तो बाद तुहाडी जन्म भूमि श्री आनंदपुर साहब, अज तो बाद तुहाडी धर्म दी मां माता साहब कौर, अज तो बाद तुहाडे पिता गुरु गोबिंद सिंह, ते मां जे मैं गुरु गोबिंद सिंह दी धी हो गई, ते जेड़े गुरु गोबिंद सिंह दी धी हाँ वो आपे ही मेरे लिए बर लभ लेगा, तुसीं ना फिक्र करियो। देखो कितना विश्वास। कहनी मां जेड़े गुरु गोबिंद सिंह दी अज मैं धी बन के आई ना, वो मेरा पिता बन गया, ते मेरा पिता आपे मेरे लिए वर लभ लो, तुसीं चिंता ना करो। खुश होके चेहरे ते शामां नूं रहरास कीती, पाठ पढ़िया। अगले दिन उहदा एग्जाम सी, पेपर दिते, ते जिहड़ा रिजल्ट आया बीएड दे फाइनल एग्जाम दा, उन्हें पहले दर्जे फर्स्ट डिवीजन उन्हें पास किए एग्जाम। सरकारी जॉब लिए फार्म भरते, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाउण लग गई। 1.5 महीने बाद उन्होंने सरकारी जॉब मिल गई, टीचर लग गई। साहब ने कृपा की, साल दे विच 8-9 महीनों रिश्तेदारी विचों एक रिश्ता जुड़िया, अमृतधारी बच्चा, मैथ टीचर लगा होया,
नितनेम दा पक्का धारनी, गुरु दे स्थान पक्के अमृत धारी। सोहना सुनखा रिश्ता जुड़िया ते रिश्ता भी हो गया और महीने दे अंदर अंदर उन्हें आनंद कारज भी करता। ये बच्ची आनंद कारजां तो बाद विआही आई गुरदासपुर। जदों पटियालेों गुरदासपुर विआही आई, जिथे रहिंदे ने ये बार-बार कलोनी विच इन्हां दा घर आ, दोवां ने अपना गृहस्थ जीवन शुरू किया। अमृत वेले उठ के दोवां आपो अपनी पोथी तो नितनेम करना ते नितनेम समाप्त तो बाद महल्ले च जिहड़ा गुरुद्वारा साहब बनिया सी उत्थे जाके गुरु ग्रंथ साहब दे दर्शन करने। वापस आके बच्ची ने नाश्ता बनाना, घर वाले ने तैयार होना, दोवां जणियां प्रशादा छक के अपनी जॉब ते चले जाना। गुरु ने कृपा की, ऐदां रोज नेम ते प्रेम नाल भरिया इन्हां दा जीवन। साहब ने किहड़ी दात है जिहड़ी गुरु दे चरनां चों नहीं मिलदी। जिहड़ियां चीज़ां ने लोग मत्थे टेकदे, नक रगड़दे, दीवे जगाउंदे, थां थां भटकदे, महाराज ने कृपा की, 1.5 साल बाद इन्हां दे घर पुत्र भी बख्शता। हुण सब कुछ मिल गया। पर कदे कदाई गुरु परख के वेखदा सिख नूं कि जिहड़ा रोज मत्थे टेकदा, किरपाना भी पाउंदा, उपरों अमृतधारी भी कहाउंदा, ये पक भी गया किते कच्चा ही दिन तुरिया फिरदा। महाराज ने परख पाई, क्योंकि सुख दुख दोएदार कपड़े पै रह जाए मनुख। इन्हां दे घर थोड़ा जिहा रोग शुरू होया। वो जिहड़ा मास्टर सी ना बच्ची दे घरों, उन्होंने थोड़ा जिहा बुखार शुरू होया, नाल खंघ रेशा हो गई, बीमारी बढ़ती बढ़ती टीवी हो गई। इलाज कराउण दवाई ना लगे, किते 10 दिन आराम, फिर उस तरह डॉक्टर बदलना, फिर उस तरह 6 महीने लंघ गए। बड़े रिश्तेदार आए आके ये भी कहिंदे हो किसे तो पुछ दस लो, जिद च ना रो, किसे ने खिलाया होना कुछ। रिश्तेदार मां ने बड़ा आके कहा, लोकी बड़े औंतरे ने कुछ खिलाता होना, किते पुछ दस लो। इन्हें कहा नहीं, गुरु ग्रंथ साहब तो सिवाए किसे तो नहीं जाना। जेदा गुरु इन्ना समर्थ होवे वो किसे बाबे कोलों की पुछे। दोवें विश्वास में जुड़े रहे। जदों समर दियां गर्मियां दियां छुट्टियां आईयां ना, थोड़े दिन सेहत ठीक हुई ते मास्टर ने कहा घर वाली नूं सिंघणी नूं भागवाने, मैं ते सफ़र नहीं कर सकदा, इंज कर तूं बच्चियां नूं लै जा, 2-4 दिन रहा अपने पेके पटियाले, नाले ये भी बच्चे मन होदर पै जाऊगा। वो कहने लगी जी 7 वचन, दवाई टाइम सिर खांदे रहो। बड़े प्यार नाल पति अपने सिंह कोलों आग्या लैके चल पई, बच्चे लैके सवेरे चली गुरदासपुरों ते शामी पहुँच गई पटियाले। बच्चे बच्चियां च खेडण लगे, भरा भरजाइयां कोल बैठी, दुख सुख कीता, गल्लां बातां होईयां, रात पई ते अजे प्रशादा छक के हटे ने ते मां बोली, कहंदी पुत्र गल सुन, उदां तू जिदी वड़ियां मनना ते नहीं, तू जे मन लेना ते तेरा घर दा दुख रोग हट सकदा। बड़े लोग जांदे ने पटियालेों नाभे वाले रोड ते, एक मुसलमान बाबे दी समाध ते कोई मुसलमान बैठा, पानी पढ़ के दिंदा, तवीत धागा करदा, बड़े रोग हटदे। वो बच्ची हाथ जोड़ कहंदी हस के, मां मैनू केड़ी संगत दे रही हैं, केड़ी शिक्षा देन लगी? मेरा गुरु समर्थ है, ते जेदा गुरु गुरु ग्रंथ साहब होवे वो किसे अगे जाके अपना सिर नहीं रखदा। ये ओ दर है जिथे सिख अंदर इन्नी दृढ़ता आ जाती। वो कहना मालका जिदन तेरा दर छड्ड के किसे होर दर ते झोली अड्डनी पे, उदन मैनू जीण दी लोड़ नहीं, जिंद कढ लई। इन्ना विश्वास सिखां च। बाबे फरीद जी ने वचन कहा बाणी अंदर, कहंदे दाता जिदन तेरा दर छड्ड के मैनू सिर किते होर रखना पै जाए, उदन मैनू जीण दी लोड़ नहीं, जान कढ लई। फरीदा बार पराए बैसना, साई मुझे ना दे, जे तू एवं रख सी जियो शरीरों ले। मेरा गुरु ग्रंथ साहब समर्थ है। ते मां गुस्से च बोली, केड़ा गुरु ग्रंथ साहब? जिन्हू 6 महीने हो गए तेरा दुख तो दूर नहीं कर सकिया। केड़ा गुरु ग्रंथ साहब जिन्हू 6 महीने हो गए तेरे घर की बीमारी नहीं हटी? केड़ा गुरु ग्रंथ साहब जिहड़ा आप चल के नहीं तेरे घर आउंदा? केड़ा गुरु ग्रंथ साहब? जदों ऐ बोली ते धी रो पई, हथ जोड़े, मां मैनू जो मर्जी कह ला, मेरे गुरु ग्रंथ साहब की निंदिया ना कर। उठ के दूजे कमरे चली गई। रहना सी 2-4 दिन।
रात चंगी तरह नींद ना पई, सवेरे उठदियां सार नाश्ता करवाया बच्चों नूं ते तुर पई वापस गुरदासपुर। जदों 3 बजे शाम दे पहुंची गुरदासपुर बस अड्डे, तो बस अड्डे उतर के इन्हें रक्षा लिया। बदल होया होया, बरीक बरीक किणियां दा मींह पवे, रात दा भरमा मींह पिया होया। 5 रुपए दे के रक्षा किया, बच्चों नूं घर लै गई। सफर च बच्चे थक के सौ गए, इन्हें घर जाके सफाई शुरू की, कमरियां च झाड़ू पोचा दिता। जदों झाड़ू फेरदियां बेड़े च आई, तेनू मां की गल चेते आई, केड़ा गुरु ग्रंथ साहब जेड़ा तेरा दुख नहीं हटा सकिया। अखां भर के विराग च रो पई। अजे अथरू साफ किते, इन्ने नू दरवाजे ते किसी ने दस्तक दिती। ये बच्ची ने सिर कज्जिया, झाड़ू परां रखिया। जदों हथ हो के दरवाजा खोलिया, हैरानी दी हद ना रही। दरवाजे विच 5 सिख खलोते, एक सिख दे सीस ते गुरु ग्रंथ साहब दा स्वरूप, एक चौर साहब करे ते एक ने हाथ जोड़ के कहा, भैन जी जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी दा प्रकाश सी, रात मींह पै के वो कमरा च हो गया। सानू पता तुहाडे घर कमरा वाधू, जे कवों ते प्रकाश कर दईए। इन्नी गल सुनी, मन भर गया, रो पई विराग च। माए जे नेड़े होवे ते आके वेख, मेरा गुरु ग्रंथ साहब मेरे घर चल के आ गया। 5 सिखां दवा दव चंदोआ बन्निया, बिस्तरा लाया, ते जदों महाराज दा प्रकाश किया, उदों गुरु ग्रंथ साहब पता की बोले। प्रकाश करके हुक्म पढ़िया ते इंज लगा जिवें गुरु ग्रंथ साहब बोल के कहंदे, हुण धीए जे मेरे ते विश्वास किया, जा फिर अज तो बाद तेरे घरों दुखां दा डेरा ही चुकिया गया। साहब ने हुक्मनामा दिता, सोरठ महला 5वां, परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा पन्ना, आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभ कृपा तारी। गुरु ग्रंथ साहब बोले, धुर की बाणी आई, दिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच वखाना। ओ दिन हद परत के एक गोली तक नहीं लैनी पई, टैबलेट पता नहीं बीमारी किधर उड़ गई, ते साहब ने उहदे घर विच फिर खुशियां परतियां। कहण तो भाव पता की, अज कल्ला व्याख्या करन तक सीमित नहीं रहना, आपां कल्ले मत्थे टेकन तक सीमित ना रहो। जे गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश पुरब मना रहे हो, हथ जोड़ बेनती आ, सिखो विश्वास लियाओ अंदर। तुहाडा गुरु ग्रंथ साहब बोलदा भी है, तुहाडा गुरु ग्रंथ साहब सुनदा भी है, पर सानू सुनाउणा आ जाए किते। 60% सिख इत्थे दा मैनू पता नहीं, साडे लुधियाने च बीमारी फैली हुई है, तुसीं बच जिओ। जे होए ते इहदा इलाज करा लिओ हुणे। गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था भी टेक दे, बाणी भी गुरु ग्रंथ साहब दी पढ़ दे, हर रोज नितनेम भी कर दे, पर माफ करियो विश्वास गुरु ग्रंथ साहब ते नहीं। अज 60% सिख ऐसे ने जिन्होंने विश्वास हत्थां च पाइयां नगां वालियां मुंदियां ते आ, कहने नगां नाल ही काम होई जांदा। जे तुहानूं भरोसा नगां ते है, तुसीं गुरु ग्रंथ साहब दे सिख नहीं। जे तुसीं हत्थ च पहन के नगां ते भरोसा करना ते गुरु ग्रंथ साहब दे सिख नहीं। मेरी हथ जोड़ बेनती, जिन्हीं नग पहने ने अजे ही ला के जांदे ही सुट जिओ सरोवर च। सच्चे पातशाह मीरी पीरी दिया मालका, अज तो बाद पल्ला तैनू फड़ाया, तू रखा, अज तो बाद हथ तेरे आसरे दिता। गुरु दे आसरे चल के वेखियो, लोक ते परलोक दा सुख। सतगुरु नदर किरपा करन, प्रबंधकां दे कीते उपराले सफल होण, पुरब मनाए सफल होण। जे आपां गुरु दे हुक्म में चल के भरोसे विश्वास नाल मन सकीए, ये गल दृढ़ता नाल अंदरों कहीए कि आग्या पई काल की तवै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो। आखिरी गल कह दा जिहड़ी कल रह गई सी, कई तो वो सुनने वास्ते बैठे। वो अंग्रेज औरत
ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਏਸੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ, ਸਿੱਖੋ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਔਰਤ ਡੰਡੌਤ ਕਰਕੇ ਗਈ। ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਈ, USA ਨਾਸਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ 6 ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਯੈਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ? ਉਹ ਬੜੀ ਆਕੜ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਯੈਸ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਉਂ ਤੇ ਇਹ ਜੂਨੀਅਰ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 6 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੂਨੀਅਰ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵਟ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੀ ਇਹ 6 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਨਣਗੇ? ਕੀ ਇਹ 6 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਨ ਕੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਗੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਔਰਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਨੋ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ, ਬੁੱਧੀ, ਦਿਮਾਗ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਨਦੇ, ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੱਲੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕ ਪੁਸਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਲਾਹੀ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਖਾਨੇ ਪਈ ਕਿ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ, ਉਦਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੰਡੌਤ ਕਰਕੇ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟਾ ਦੇਗੀ। ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर वाह वाह, ऐसे गुर को बल बल जाइए, अब मुक्त मोहे तारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए, अब मुक्त मोहे तारे, ऐसे ऐसे गुर को धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री ऐसे गुर को बल बल जाइए, अब मुक्त मोहे तारे, ऐसे गुर को
बल बल जाइए अब मुकत मोहे तारे। ऐसे ऐसे गुर को ऐसे गुर को बल बल जाइए अब मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए अब मुकत मोहे तारे। ऐसे तारे। सतगुरु किरपा करन तुहाडी सारियां दी हाज़री दरगाही प्रवान होवे। एक असीस तुसीं सारियां ने जरूर बख्शनी, क्योंकि चित जोड़ के बैठे हो ते हिरदियां तो असीस दिओ। जो सतगुरु जी आप किरपा नदर करके इस रसना तो ये बचन अखवाउंदे हन, सानू जीवन विच कमाउण दा भी वल बुद्ध समर्था आप बख्शिश करन, तां जो आप संगत दी चरण धूड़ नाल साडा भी जीवन जन्म सफल हो सके। असीं कल्ले किते कहण मात्र ना रह जाइए। वो ट्रैफिक वाले सिपाहियां वाला काम ना होवे। वो इत्थे कुरुक्षेत्र दे चौरस्ते 'च खड़े रहिंदे ते लंघण वाले अंमृतसर भी पहुँच जांदे। किते वो गल ना होवे असीं इशारा करन तक समझाउण तक रह जाइए। सतगुरु आप बांह पकड़ के ये जीवन यात्रा अपने चरणों नाल जोड़ के सफल करन। होइयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा। समुचे प्रबंधक कमेटी का धन्नवाद। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सेवक जथे का धन्नवाद जिन्हें तुहाडे दर्शन करवाए। सिख मिशनरी कॉलेज भौर सैदा उत्थों के समूह स्टूडेंट प्रिंसीपल साहब जो कल भी दर्शन दिते अज भी आए, उन्होंने भी धन्नवाद है। सतगुरु इन्हां पासों सेवा लैण। होइयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा बख्शणी। कोटाहन कोट शुक्र पिता गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का। अगला प्रोग्राम सरवण करो ते दासरियां नूं बख्शो छुट्टियां। दोवें हथ जोड़ आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।